खुदावंदा, मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ। तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तियानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता, मगर परवाज करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, in the beginning, I want to welcome all the students of Standard 12th in mathematics class. According to textbook of 12th standard, there are two parts: mathematics and statistics part first and mathematics and statistics part second. I will try to teach you mathematics and statistics part first as easy as possible. As per our new syllabus, there are 7 chapters in mathematics part first. Number 1, mathematical logic. Number 2, matrices. Number 3, trigonometric functions. Number 4, a pair of straight line. Number 5, vector. Number 6, line and plane. Number 7, linear programming. Now let us start our first chapter. Chapter number 1, mathematical logic. As per the title of the chapter, we have to know what is logic. That means meaning of logic. Logic is the word derived from a Greek word logos, means reason. That means logic deals with reasoning and method of reasoning. As we know, mathematics is a subject, and as a student of mathematics subject, we have to know that mathematics deals with exactness, and for exactness it requires proper proof, and for proper proof it requires proper reasoning. Therefore, mathematics is a logical subject. Mathematical logic, that means proper reasoning, helps in understanding the statement of theorem, converse of theorem, corollaries of theorem. In each and every step in problem solving, we require proper reasoning. That means mathematical logic. Another application of mathematical logic is in circuit designing, programming, and in artificial intelligence. As per the chapter, there is only one application indicated in last exercise, which is application of logic in switching circuit. If we talk about logic, then systematic study of logic is done in ancient Greece, which was done by a great philosopher and thinker who is teacher of Alexander the Great, whose name is Aristotle. This period was from 384 BC to 322 BC. इसको हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। यह सिकंदर आजम का उस्ताद था। इसने सिस्टमेटिक
स्टडी लॉजिक की शुरू की थी। If we talk about mathematical logic, then mathematical logic was developed by an English philosopher and mathematician, George Wheel. His period was from 2 November 1815 to 8 December 1864. Hence, mathematical logic is also called as Boolean logic. Or symbolic logic. Boolean logic or symbolic logic. According to our philosophers and thinkers, language is medium of exchange of our ideas and thoughts with each other. For that purpose, we use sentences. In each language, there are 4 types of sentences. Number 1, assertive sentence. Number 2, exclamatory sentence. Number 3, interrogative sentence. Number 4, imperative sentence. If we talk about assertive sentence, either it is affirmative or negative. Apart from that, there are 2 basic types of assertive sentence. One is declarative. Other is non-declarative. Declarative assertive sentence is a simple sentence. In this type of sentence, we can declare, or everyone comes at a particular point and we can declare it, either it is true or it is false sentence. That means its truth value can be declared by us. हम डिक्लेयर कर ही सकते हैं इसकी ट्रूथ वैल्यू एग्जैक्ट, एकदम तमाम के तमाम लोग मिलके एग्जैक्ट इसकी ट्रूथ वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं कि सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर. अगर ये एक सिंपल सेंटेंस है, आई एम अ टीचर, अगर हम इसकी ट्रूथ वैल्यू मैं बोलूं या आपसे पूछूं, आप सब मिलकर इसकी ट्रूथ वैल्यू डिक्लेयर करेंगे और क्या बोलेंगे कि हाँ ये सेंटेंस सही है, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है. तो इसकी ट्रूथ वैल्यू चूंकि डिक्लेयर होती है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस आई एम अ टीचर, ये सिंपल सेंटेंस डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा. दूसरी एग्जांपल देता हूं. मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पूरी दुनिया के इंसान मिलके बोलेंगे यस, ये सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है. सब मिलके इकट्ठे हो जाएंगे, बोलेंगे यस ट्रू है. तीसरी एग्जांपल देता हूं. मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया. पूरी दुनिया मिलके इनकार कर देगी. यानी ये सेंटेंस सिंपल असर्टिव सेंटेंस था, लेकिन ये डिक्लेरेटिव है क्योंकि पूरी दुनिया मिलके उसकी ट्रूथ वैल्यू डिक्लेयर कर रही है कि वो फॉल्स है, फॉल्स सेंटेंस है.
देयरफॉर इस टाइप के सेंटेंसेस जिसमें हम पूरी दुनिया मिलके उसकी ट्रूथ वैल्यू डिक्लेयर कर पाए कि आइदर द सेंटेंस इज हैविंग ट्रूथ वैल्यू ट्रू or the sentence is having the truth value false. Therefore, this type of assertive sentence is called declarative assertive sentence. इससे हटके assertive sentence की दूसरी टाइप है नॉन डिक्लेरेटिव assertive sentence. अब ऐसा assertive sentence जो कि assertive रहेगा, सिंपल रहेगा, लेकिन उसकी ट्रूथ वैल्यू हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी हमारा हर एक का ओपिनियन पर्सन टू पर्सन वेरी होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, और ओपन माइंडेड हम रह के सिर्फ सोचते ही रहेंगे, या तो उसे डिक्लेयर ही नहीं कर पाएंगे, ओपन माइंडेड होकर सिर्फ सोचते रहेंगे, या अगर हम किसी ओपिनियन पे आए तो 101% दावे से नहीं आ पाएंगे, और सब मिलके उसकी ट्रूथ वैल्यू सिर्फ ट्रू ही बोले, या सब मिलके उसकी ट्रूथ वैल्यू सिर्फ फॉल्स ही बोले, ऐसे पॉसिबल नहीं रहेगा। पर्सन टू पर्सन ट्रूथ वैल्यू वेरी होती रहेगी। ऐसे सिंपल असर्टिव सेंटेंस को हम नॉन डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेंटेंस ले लूं, आई एम अ बेस्ट टीचर, अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू बोले, और कुछ स्टूडेंट बोलेंगे नहीं मैं बहुत घटिया टीचर हूं, तो वो उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स बोलेंगे। कुछ का माइंड कंपैरिजन करता रहेगा दूसरे टीचरों से, और वो एक पर्टिकुलर ओपिनियन जाहिर नहीं कर पाएंगे, और उनका माइंड ओपन होकर सोचता रहेगा। क्योंकि यहां इस सेंटेंस के लिए, इस सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू के लिए पर्सन टू पर्सन ओपिनियन वेरी हो रहे हैं, हर एक के ओपिनियन अलग अलग आ रहे हैं, और ओपन माइंडेड होके हर कोई सोच रहा है, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम नॉन डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और इस टाइप का जो सेंटेंस जिसमें ओपिनियन वेरी होगा, या ओपन माइंड होकर सोचते रहेंगे, और एक ट्रू भी एग्जैक्ट नहीं बोल पाएंगे, एग्जैक्ट फॉल्स भी नहीं बोल पाएंगे। कुछ लोग ऐसे रहेंगे, कुछ लोग जो ट्रू भी बोलेंगे, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, उनका आंसर दोनों निकलेगा, वो कहेंगे ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे ओपन सेंटेंस, जिसमें हमारा सबका ओपिनियन अलग अलग आता रहेगा। उस टाइप का सेंटेंस कहलाएगा ओपन सेंटेंस। हम उसमें ओपन माइंड होकर सोचते रहेंगे, ओपिनियंस अलग अलग रहेंगे। और इस टाइप का सेंटेंस चूंकि सिंपल असर्टिव सेंटेंस रहेगा, इस टाइप के सेंटेंस को हम नॉन डिक्लेरेटिव बोलेंगे, क्योंकि हम डिक्लेयर नहीं कर पा रहे एग्जैक्ट ट्रूथ वैल्यू, एग्जैक्ट पूरी दुनिया मिलके, सब मिलके, हम सब मिलके उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू नहीं बोल पा रहे हैं, हम सब मिलके सबका आंसर उसकी ट्रूथ वैल्यू के लिए फॉल्स नहीं निकलता, इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम नॉन डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। उसकी एक एग्जांपल ओपन सेंटेंस थी। अब सेंटेंस की सेकंड टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जो हैरत से बोले जा रहे हैं, खुशी के मौके पर बोले जा रहे हैं, गम के मौके पे बोले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई शर्ट देखने गए थे, अचानक एक शर्ट हमको दिखाई दी दुकान पर, हमने कहा वाह नाइस शर्ट। ये सेंटेंस हैरत जाहिर कर रहे हैं और साथ साथ में खुशी भी जाहिर कर रहे हैं, हम खुश हो गए। इस टाइप के सेंटेंस को हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अचानक किसी के मुंह से निकल रहा है शिट आई लॉस्ट माई टारगेट, उसको गम हुआ, गम के मौके पे उसने कह दिया शिट आई लॉस्ट माई टारगेट, वो अपना टारगेट नहीं हासिल कर पाया, इसलिए ऐसे मौके पे निकला हुआ ये सेंटेंस, ये क्या कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी तरीके से दो आइए सेंटेंस मे गॉड ब्लेस यू, इस टाइप का सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, तमन्ना जाहिर करने वाले सेंटेंसेस, जैसा कि अभी बच्चे सोच रहे होंगे कि काश ये ईयर 0 एकेडमिक ईयर डिक्लेयर हो जाए,
या हो जाता तो कितना अच्छा रहता। तो ये सेंटेंस भी क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। वो तमन्ना जाहिर कर रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इस टाइप के सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तमाम लैंग्वेज में एक और टाइप, थर्ड टाइप के सेंटेंस भी मिलते हैं जिनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन, either it is WH type of question or yes no type of question. For example, do you like drink? इस टाइप का सेंटेंस, yes no टाइप ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, WH टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देयरफॉर ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ऐसे सेंटेंसेस के बाद फोर्थ टाइप के सेंटेंस लैंग्वेजेस में मिलते हैं, वह इंपेरेटिव सेंटेंस, हुक्म या जुमले। इसमें आपके रिक्वेस्ट भी आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, प्लीज गिव मी योर पेन, रिक्वेस्ट करूं, इस टाइप के सेंटेंसेस। और इसी तरीके से कमांड वाले सेंटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं शट द डोर, हुक्म दे रहा हूं, मैं कमांड दे रहा हूं, देयरफॉर इस टाइप के सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं ख्वाहिश वाले सेंटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो है कहूं कि यू हैव टू स्कोर 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ये नसीहत वाला सेंटेंस है। इस टाइप के नसीहत वाले सेंटेंसेस ऐसे ही ख्वाहिश जाहिर करें, यू शुड हेल्प द नीडी पर्सन्स, तुम्हें नीडी पर्सन्स की मदद करना चाहिए, हमारी ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि तुम जो है नीडी पर्सन्स की मदद करो, इस टाइप के सेंटेंसेस। इसी तरीके से किसी को फजीहत कर रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब, डोंट स्मोक, इस टाइप के सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। इन तमाम टाइप्स में से डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस को छोड़ के बाकी तमाम टाइप के सेंटेंसेस, इन तमाम टाइप के सेंटेंसेस को स्टेटमेंट नहीं बोलते। दैट मीन्स हम अब एग्जैक्ट स्टेटमेंट की डेफिनेशन पे पहुंच गए। अ डिक्लेरेटिव assertive sentence is called a statement. A statement is a declarative assertive sentence whose truth value is either true or false but not both simultaneously. क्योंकि अगर ऐसा assertive sentence है, सादा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है जो कि डिक्लेरेटिव है और हम एग्जैक्ट 101% दावे से एक ट्रूथ वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, उसको ट्रू या फॉल्स बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वो ट्रू हो सकता है कि वो फॉल्स हो, इसका मतलब हम उसकी एग्जैक्ट ट्रूथ वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। तो जिसको हम ट्रू और फॉल्स साइमल्टेनियसली बोल रहे हैं, ऐसा सेंटेंस भी ओपन सेंटेंस कहलाएगा, नॉन डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस कहलाएगा। हम उसे डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस whose truth value is either true or false, या तो ट्रू रहे या तो फॉल्स रहे, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली एट अ टाइम। वो ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं होना चाहिए, हर एक का ओपिनियन एक ही तरफ रहना चाहिए, या तो सबके सब मिलकर उसे ट्रू बोले या तो सबके सब मिलकर उसे फॉल्स बोले। तो स्टेटमेंट हमको समझ में आ गया। अब हम स्टेटमेंट के आगे चलेंगे। सिंपल सेंटेंस जो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, दैट मीन्स डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस, उसको स्टेटमेंट बोलेंगे। अब हम लैंग्वेज में और आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां दो सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ के उसे कनेक्ट करके कंपाउंड स्टेटमेंट भी बनाया जाता है, और लैंग्वेजेस में कंपाउंड स्टेटमेंट भी होते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए हम कनेक्टिव्स के यूज करते हैं।
कनेक्टिव्स क्या है? द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड or phrase which are used to combine or join two simple statements is called connectives or logical connectives. ऐसा वर्ड या ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो दो सिंपल स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम यूज करते हैं लैंग्वेज में, उसे हम कनेक्टिव या लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। और उस कनेक्टिव की मदद से दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट जोड़ के जो नया स्टेटमेंट फॉर्म होता है, तैयार होता है, हम उस नए स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। दैट मीन्स सिंपल स्टेटमेंट वो ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हम फर्दर टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट में स्प्लिट नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। सिंपल स्टेटमेंट को हम टुकड़े नहीं कर सकते और दो सिंपल स्टेटमेंट या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को हम वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड जिसको हम कनेक्टिव बोलते हैं उसकी मदद से ज्वाइन कर दें, तो वो जो स्टेटमेंट तैयार होगा बड़ा, उसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। अब वो कनेक्टिव्स और लॉजिकल कनेक्टिव्स यानी वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, उस पे भी हमारे फिलोसफर्स और थिंकर्स ने गौर किया, उस पर दिमाग लगाया और उन्होंने पाया कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स यूज्ड इन ईच एंड एवरी लैंग्वेजेस। 5 टाइप है कनेक्टिव्स के। फॉर एग्जांपल, एंड ये एक कनेक्टिव है। एंड दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए का काम करते हैं, कंबाइन करने का काम करते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने का काम करते हैं, इसलिए इसे कनेक्टिव कहा जाता है। ये वर्ड एंड हर लैंग्वेज में यूज होते हैं सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए। एंड जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से वही मीनिंग, वही काम करने वाले दूसरे वर्ड्स भी। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो इसके अंदर एंड दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ते हुए, उसे कंपाउंड बनाते हुए, उस स्टेटमेंट की मानी में उसके अंदर दोनों बात को एट अ टाइम इंक्लूड करता है। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क एंड टी, दैट मीन्स मैं दूध भी पीऊंगा और उसी वक्त चाय भी पीऊंगा। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क एंड टी, दूध भी और चाय भी उसी वक्त पीऊंगा।